پاکستان میں دہشت گردی میں مشرقی ہمسائے کا ہاتھ ہے. سیاسی اور عسکری قیادت مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرے گی. پاکستان کی دنیا میں عزت دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا چند روز میں دہشت گردی کے سنگین واقعات ہوئے. پولیس، پاک فوج کے جوان اور شہری شہید ہوئے. دہشت گرد افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں. تمام وسائل استعمال کر کے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے. شہداء کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی. پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. آخری فسادی اور دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کوئٹہ میں نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس. فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی اجلاس میں شرکت. گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سمیت وفاقی وزراء اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام بھی شریک ہوئے. شہباز شریف کا دہشت گردی کے واقعات میں شہید فوجی جوانوں، پولیس اہلکاروں اور شہریوں کو خراج عقیدت. امریکی فوج کے ایران پر حملوں میں شدت، 5 صوبوں کو نشانہ بنایا. چابہار، بندر عباس، سیرک اور کنارک میں شدید بمباری. امریکی حملوں میں 14 افراد شہید، 78 زخمی ہوئے. ایئرپورٹ، پلوں، ساحلی ریڈارز، اینٹی شپ میزائل سائٹس کو نشانہ بنایا گیا. جنوبی صوبے ہرمزگان اور بوشہر میں بھی زوردار دھماکے. ایرانی شہر سیرک میں ماہی گیروں کی کشتیوں پر امریکی حملہ. ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں 3 افراد شہید، 15 زخمی ہو گئے. امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران کے 90 عسکری اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. ایرانی فوج نے بندر عباس کے ساحلی علاقوں میں میزائل شکن نظام متحرک کر دیا. ایران کے امریکی اڈوں پر جوابی وار. اردن، کویت اور بحرین میں امریکی تنصیبات پر حملے. اردن میں ایران کے میزائل حملوں میں ظاہراً بھج اٹھے. حکومت کی شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت. اردن کی فوج کا 8 ایرانی میزائل فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ. اردن میں حملوں کے بعد امریکی سفارت خانے نے سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا. شہریوں کو گھروں کے اندر رہنے کی ہدایت. پازاران انقلاب کے خوزستان میں امریکی حملوں میں 3 اہلکاروں کی شہادت کی تصدیق. خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے دوبارہ حملے کیے تو رد عمل خطے میں موجود دیگر امریکی اڈوں تک بھی پھیل جائے گا. آبنہ ہرمز میں امریکی مہم جوئی کا سخت جواب دیا جائے گا. تجارتی راستوں کے تعین میں امریکی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی. ایران نے مزید حملے کیے تو 20 گنا زیادہ طاقت سے جواب دیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی. کہا کہ امریکہ اپنی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. تہران پر حالیہ حملے تجارتی جہازوں پر حملوں کا رد عمل ہے. امریکی فوج نے بھرپور اور مؤثر انداز میں اہداف کو نشانہ بنایا. امریکہ پہلے ہی کامیابی حاصل کر چکا. ایران کے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے. ایران معاہدہ چاہتا ہے لیکن یقین نہیں وہ کسی معاہدے پر عمل کرے گا یا نہیں. صدر ٹرمپ کا پاک بھارت جنگ کا ایک بار پھر تذکرہ. کہا اس جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے. پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ ٹرمپ نے 5 کروڑ جانیں بچائیں. امریکہ کو دھونس، دھمکیوں اور وعدہ خلافی کی قیمت چکانا پڑے گی. ایران کا امریکہ کو 2 ٹوک پیغام. ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالیباف کہتے ہیں کہ بے مقصد ہاتھ پاؤں مارنے سے گریز کریں ورنہ آپ مزید دلدل میں دھنستے جائیں گے. آبنہ ہرمز امریکی دھمکیوں سے نہیں، ایرانی انتظامات کے تحت ہی کھلے گا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے نتائج کے ذمہ دار اتحادی ممالک بھی ہیں. جن نیٹو ممالک نے ایران پر حملوں کے لیے سرزمین، ہوائی اڈے اور انفراسٹرکچر فراہم کیا وہ جنگ میں برابر کے شریک ہیں. نیٹو سیکریٹری جنرل مارک روٹے کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ یورپ اس جنگ میں غیر جانبدار نہیں رہا. ادھر امریکی حملوں کے خلاف ایران کا UN سیکریٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کو خط. ایرانی مندوب سعید ایروانی کا امریکی جارحیت رکوا کر واشنگٹن کو بین الاقوامی ذمہ داریوں کا پابند بنانے کا مطالبہ. قطر کی اردن، بحرین اور کویت پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت. قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ خطے کو بلا جواز حملوں کے بھیانک نتائج سے بچایا جائے. بحران کے حل کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے. قطر کا اردن، بحرین اور کویت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ. قطری وزیر اعظم اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں کا ایران امریکہ فوجی کشیدگی پر تبادلہ خیال. قطری وزیر اعظم نے کہا کہ تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانا خطے کے امن و استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. حملے بین الاقوامی بحری جہاز رانی کی سیکیورٹی کو شدید خطرات سے دوچار کر رہے ہیں.
शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई का जसद खाकी इराक से ईरान पहुंचा दिया गया। शहीद अली खामनाई की तदफीन ईरानी शहर मशहद में होगी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मशहद के ताज़ियती जुलूस में पाकिस्तानी परचम थामे सोगवारान शरीक। आज सुबह इराकी शहर करबला में शहीद ईरानी रहबर आला की नमाज जनाजा शेख अब्दुल मेहदी अल करबलाई ने पढ़ाई। रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अदा की गई। नमाज जनाजा में 40 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। हर आंख अश्कबार दिखाई दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क्रोशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का तिजारत और सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रवाबित, ज़राअत, सयाहत और हुनरमंदी, अफरादी क़ुव्वत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, पाकिस्तान और क्रोशिया के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात बाहमी एहतराम, खैर सगाली और मुश्तरका मुफादात पर मबनी हैं। क्रोशियन वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान और उसकी क़यादत के नुमायां किरदार को सराहा। उधर नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और क्रोशियन वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत मुश्तरका इजलास हुआ। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा हैं। आलमी बरादरी को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करना होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने क्रोशिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूदा दरीना हल तलब तनाज़ा है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी क़वानीन और मुआहदों की खिलाफ वर्जी है। क्रोशियन वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद को अमन और सिफारतकारी का शहर करार दे दिया। बोले, पाकिस्तान और क्रोशिया के ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एतमाद की बुनियाद पर इस्तेवार हैं। इनका दौरा पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। दुनिया को अमन के क़याम के लिए बाहमी ताउन की ज़रूरत है। दुनिया को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है जिनसे निमटने के लिए आलमी सतह पर ताउन और मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में पुलिस समिट से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जुराइम, साइबर जुराइम, मुनशियात की स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे खतरात से दुनिया का कोई मुल्क महफूज नहीं। कोई भी मुल्क तनहा इन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। जुराइम के तदारुक के लिए बर वक्त मालूमात का तबादला यकीनी बनाना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी से जुराइम की बेखनी में मदद ली जा सकती है। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और बैन अल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की अमन के लिए काविशों को सराहा। पंजाब के कुछ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम फाल कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, हमें तैयारी करना होगी। कुछ शहरों में दर्जा हरारत 52 डिग्री तक जाने का खदशा है। हीट वेव से बचने के लिए पंजाब हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पोटोहार रीजन में क्लाउड बर्स्ट का खदशा है। बारिशें कम होने से इस साल हीट वेव का खतरा ज़्यादा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। विफाक और पंजाब के दरमियान शदीद मौसमियाती इवेंट्स के लिए अर्निंग वार्निंग सिस्टम पर इत्तफाक। पंजाब में विफाकी हुकूमत के इश्तराक से सेंटर लॉर्ड्स इंफॉर्मेशन स्क्रीनिंग कायम करने पर गौर। PDMA को NDMA के साथ राबता कायम रखने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क में शदीद और गैर मुतवक्के मौसमी रुझानात में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ। मुसद्दिक मलिक बोले, विफाकी हुकूमत हर सूबे से ताउन के लिए हमा वक्त हाजिर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। काबीना ने हेल्थ पॉलिसी और पेशावराना तहफ़्फ़ुज़ सेहत कवायद की मंजूरी दे दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात शफी जान कहते हैं, सेहत कार्ड प्लस को OPD तक तौसीह दी जाएगी। ICU, CCU, ट्रामा और बर्न सेंटर्स कायम होंगे। सफूवत गयूर शहीद मेमोरियल अस्पताल पेशावर की तौसीह की मंजूरी दे दी गई। ज़िला खैबर के जमरूद कॉम्प्लेक्स में एक्साइज पुलिस स्टेशन के लिए अराज़ी मुंतकिल की मंजूरी।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात, ट्रांसपोर्ट मंसूबों, सरमायाकारी और मुस्तकबिल के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने वफ्द को कराची में येलो लाइन BRT मंसूबे पर पेशरफ से आगाह किया। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत खुसूसी बस रूट्स मुतारिफ करा रही है। हुकूमत सिंध कराची ता सक्खर तक हाई स्पीड ट्रेन चलाने की ख्वाहिशमंद है। तरसीलात ज़र में 8.6% सालाना इजाफा रिकॉर्ड। माली साल 2025 में 38.3 अरब डॉलर रहीं। 2026 में तरसीलात ज़र 41.6 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई। जून 2026 में तरसीलात ज़र की मद में 3.5 अरब डॉलर वसूल हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समंदर पार पाकिस्तानियों से रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है, पूरी कौम को उन पर फख्र है। माली साल 2025-26 में विफाकी इखराजात में 15% कमी रिकॉर्ड। दस्तावेज के मुताबिक साल 2024-25 में विफाकी इखराजात में 31% इजाफा हुआ था। बैरूनी कर्जा 286.6 अरब डॉलर और अंदरूनी कर्जा 80.5 खरब रुपए तक बढ़ गया था। दस्तावेज के मुताबिक अब बैरूनी कर्जा 134.4 अरब डॉलर रह गया। अंदरूनी कर्जा भी कम होकर 54.4 खरब रुपए हो गया। निजी कंपनी के कार्गो जहाज के अमली की तलाश के लिए समंदर में पाक बहरिया का ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू मिशन में बहरिया का ATR तैयारा और फजाइया का साब तैयारा भी हिस्सा ले रहा है। ज़राए के मुताबिक हादसे का मकाम तकरीबन 3000 मीटर गहरे समंदर में वाक़े। रिकवरी इंतहाई पेचीदा मरहला रहा। मलबा मिलने का मकाम तैयारे की हतमी मौजूदगी की निशानदेही नहीं करता। तैयारे के दुरुस्त मकाम के तयन के लिए मजीद जामे सर्च ऑपरेशन दरकार है। गुज़िश्ता रोज़ कार्गो जहाज का मलबा और माड़ा के साहिल से 53 नॉटिकल माइल जुनूब में मिला। जर्मनी का अमेरिका से टोमाहाक मिसाइल खरीदने का ऐलान। तुर्क मीडिया के मुताबिक नेटो सरबराही इजलास की साइड लाइन्स पर वाशिंगटन के साथ मुआहदा हुआ। मुआहदे के तहत मिसाइलों को जर्मनी में नब्ज किया जाएगा। जर्मन चांसलर ने कहा कि यूरोप अपनी सिक्योरिटी को मुकम्मल तौर पर आउटसोर्स नहीं कर सकता। यूरोपीय मिसाइल सिस्टम्स की तैयारी पर भी काम कर रहे हैं। इसराइल ने लेबनान से फौजें निकालने से साफ इनकार कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा कॉटन्स ने ट्रंप के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा, हमें लेबनान में दाखिले के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत थी, न वहाँ रहने के लिए किसी की इजाज़त चाहिए। मजीद कहा, जब तक हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह नहीं किया जाता, इसराइली फ़ौज लेबनान में मौजूद रहेगी। अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि मेरे ख्याल में इसराइल लेबनान से निकल जाएगा। जासूसी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम। इटली का रूसी सिफारत खाने के 2 फौजी अताशियों को मुल्क बदर करने का फैसला। रूसी अहलकारों को 3 दिन के अंदर रोम छोड़ने का हुक्म। अतालवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस मगरिब और इटली के खिलाफ हाइब्रिड हथियार इस्तेमाल कर रहा है। चीन और भारत में सैलाब और तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। चीनी शहर नानिंग में सैलाब से हलाकतों की तादाद 39 हो गई। नानिंग में डैम टूटने से सैलाबी रैला रहायशी इलाकों में दाखिल। मुतासरा इलाकों में हंगामी ऑपरेशन जारी। उधर भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तूफानी बारिशों के बायस अमवात की तादाद 62 हो गई। बिजली गिरने से 25 अफराद हलाक और 17 जख्मी हो गए। उधर बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाह गुज़ीन कैंप पर मिट्टी का तोदा गिर गया। 8 बच्चे जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए।
मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना की आज 59वीं बरसी मनाई जा रही है। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना काम किया। बरे सग़ीर की मुस्लिम ख़वातीन को तहरीक आज़ादी में मुअस्सर किरदार अदा करने के लिए मुतहरिक किया। खिदमात के एतराफ़ में कौम ने उन्हें मादर मिल्लत का खिताब दिया। पाकिस्तानी कौम उनकी लाजवाल खिदमात पर उन्हें आज भी सलाम पेश करती है। दौरा वेस्ट इंडीज की तैयारियां। कौमी टेस्ट टीम का रावलपिंडी में प्री सीरीज कैंप। खिलाड़ियों की कोचिस की निगरानी में 3 घंटे तक ट्रेनिंग। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 मैच 25 जुलाई से 10 अगस्त तक खेले जाएंगे। ICC टेस्ट बैटर्स रैंकिंग जारी। टॉप 10 बैटर्स में पाकिस्तान का कोई बैटर शामिल नहीं। ICC टेस्ट बैटर्स रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड का पहला नंबर बरकरार। इंग्लिश बैटर्स हैरी ब्रोक दूसरे, जो रूट तीसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का फहरिस्त में 18वां नंबर है। बाबर आजम 19वें नंबर पर है।